cylindrical equal area projection. Okay, so if we look at the name of the projection, it tells us about its some of its main properties. So cylindrical projection means when we are assuming that the map or the paper will wrap around the globe as a cylinder, just like this is a cylinder and it wraps around the globe. The circle is the globe, and so it wraps it around like this, so it's a cylindrical projection. Equal area means it's a projection which preserves area, और इस projection के अंदर area सही से show किया जाएगा. Okay, so the question for like all the other projections, the question is draw a cylindrical equal area projection for the world using RF 1:250 million and the projection interval of 15 degrees for parallels and 30 degrees for meridians. So this is the question, and sometimes in the cylindrical projections, instead of the world, they might give for one hemisphere, either the eastern hemisphere or the western hemisphere. So according to that we have to construct it. ठीक है, so इसमें जब world है तो जब world या hemispheric extent होगा in the cylindrical projection, then we have to be careful about the number of meridians we are drawing. If it's for the whole world, then we will make 360 meridians according to the interval. Like here we have 30-degree interval, so 360 divided by 30, we will have 12 meridians. Okay, then if it's for one hemisphere, then one hemisphere has 180 degrees, यानी 360 का हाफ 180, तो फिर 180 के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मेरिडियंस देखेंगे. तो अगर ये एक हेमिस्फेयर के लिए होता तो 30 डिग्री के इंटरवल पे कितने मेरिडियंस बनते? 180 डिवाइडेड बाय 30, सो वी विल गेट 6 मेरिडियंस. सो दैट इज़ द सिचुएशन फॉर द हेमिस्फेयर और द वर्ल्ड. इसमें हमें वर्ल्ड का बनाना है. ओके, लेट्स मूव अहेड. The some of the basic calculations we have to do for every projection, and that includes the calculation of reduced radius. Firstly, हमेशा कोई भी projection हो आपको सबसे पहले reduced radius निकालना है, और उसका formula actual radius of earth divided by the ground value in RF. So earth का actual radius है 250 million inches या 637 million centimeters. इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया, एक्चुअल रेडियस लगाया हमने इंच वाला 250 मिलियन, और इसको डिवाइड किया RF की ग्राउंड वैल्यू से. और RF की ग्राउंड वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है? फ्रॉम द क्वेश्चन के 1 के अलावा जो दूसरा नंबर है. सो वी डिवाइडेड दैट एंड वी गॉट 1 इंच. सो दिस इज़ द रिड्यूस्ड रेडियस. इस कैलकुलेशन के बाद हमें दूसरा काम करना होता है लेंथ ऑफ इक्वेटर, एंड लेंथ ऑफ इक्वेटर इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सो यहाँ पर हमने 2 पाई की वैल्यू लगाई 3.14, और आर की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 1 इंच, उसे हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगाया, एंड देन वी गॉट 6.28. सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द होल इक्वेटर उस केस में जब हमें पूरे वर्ल्ड की प्रोजेक्शन बनानी हो. बट इफ़ हमें एक हेमिस्फेयर गिवन हो, देन we divide the length of equator by 2, उसको हाफ कर देंगे. Okay, so for this particular cylindrical equal area projection we need this case length of equator which is 6.28. ये दो calculations हमने कर ली. Now we'll move on to the next calculation, and that is the listing of parallels and meridians, के हमें कितने parallels मार्क करने हैं और कितने meridians मार्क करने हैं, कितने parallels ड्रॉ करने हैं, कितने meridians ड्रॉ करने हैं. So that's according to the interval. Here 15 degrees interval is for the parallels, so we have made the list of all the parallels. 0 से स्टार्ट किया इक्वेटर, और नॉर्थन हेमिस्फेयर में 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90 डिग्रीज नॉर्थ इन ईच. ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने डिग्री नॉर्थ हर रीडिंग के साथ आप जहाँ भी इसको मार्क कर रहे हैं या लिख रहे हैं,
must write that. Okay, then we have made the list in the southern hemisphere, उसी के according interval के according जो कि सवाल में given था. Now 30 degrees interval for meridian. Meridian क्या है? Lines of longitude. And we have made the list again starting from 0 degrees meridian or 0 degree meridian की line कहलाती है prime meridian. It divides the earth into two equal halves. और 0 डिग्री मेरिडियन के दूसरी साइड पर दुनिया में, मतलब आप अगर एक ग्लोब पे 0 डिग्री मेरिडियन देख रहे हैं एक साइड पे, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन होगी. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरवल वी हैव मेड द लिस्ट 30, 60, 90, 120, 150 and 180 degrees east, then 30, 60, 90, 120, 150, 180 degrees west. ये लिस्ट बना ली and according to this list we will construct. So now we have to make the projection base. वैसे cylindrical equal area projection is like cylindrical orthographic projection. If you remember orthographic projection के अंदर light source infinity पे होती है और the light rays are coming parallel towards the paper, towards the surface. So इस बेस मेकिंग में हम उसी कॉन्सेप्ट को रखेंगे ऑर्थोग्राफिक. ऑल्दो इसके नाम के साथ ऑर्थोग्राफिक यूज़ नहीं होता, इक्वल एरिया यूज़ होता है, बट इट्स एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑलराइट, सो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग एन आर्क इक्वल टू द रिड्यूस्ड रेडियस. आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाया रिड्यूस्ड रेडियस को यूज़ करते हुए. ठीक है, यू हैव ड्रॉन अ सर्कल. Okay, you will make this circle first and then using protractor or D, mark angles of parallels on two quadrants. आपको दो क्वाड्रेंट पर, ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये क्वाड्रेंट्स हमने कैसे बनाए हैं इसके बारे में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं, बल्कि आपने ये स्कूल लाइफ से सीखा होगा कि हाउ टू मेक क्वाड्रेंट्स. आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, यानी दिस इज़ अ डायामीटर, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आप पहले बनाएंगे. उसके बाद उसी को परपेंडिकुलर रखते हुए उसी के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन बना देंगे. जस्ट अ मिनट. So we have drawn the quadrants, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक वर्टिकल डायमीटर. तो इस क्वाड्रेंट पर, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में और नीचे वाले क्वाड्रेंट में हमें सारे इंटरवल्स मार्क कर देने हैं डी रखते हुए. ठीक है, बाय यूजिंग द डी. एंड just for the reminder, ओके, सो ये है आपका डी और आप डी को ऐसे प्लेस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर आपने ये सारे एंगल्स मार्क करने हैं 15 डिग्री के इंटरवल पे. आई एम कीपिंग दिस डी असाइड नाउ. ऑलराइट, ये एंगल्स मार्क करने के बाद अगला स्टेप क्या है, लेट्स फाइंड आउट हियर. ओके, मेक अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर. अगले स्टेप पे जब आपने ये सारे एंगल्स मार्क कर दिए, सबसे पहले आपने सर्कल बनाया, सर्कल को रिड्यूस रेडियस के अकॉर्डिंग, और सर्कल बनाने के बाद आपने इस पे ये प्लस बनाया, यानी कि दो डायमीटर्स बना के 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बन गए. उसमें से 2 क्वाड्रेंट में एक को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंसिडर किया, दूसरे को सदर्न हेमिस्फीयर कंसिडर किया. हमने ये सारे एंगल्स मार्क किए. नाउ आफ्टर मार्किंग दिस एंगल वी हैव टू ड्रॉ a tangent. Tangent is a line which meets any
एनी रेडियस एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। सो ये इक्वेटर है, ये हॉरिजॉन्टल वन, सो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी 90 डिग्री पर। सो वी विल मेक दिस टेंजेंट। सो दैट्स अ टेंजेंट एंड वी हैव ड्रॉन दैट टेंजेंट। ऑलराइट, एंड मेक श्योर कि इस इक्वेटर और इस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, make a tangent perpendicular to the equator. This is done. Now draw perpendicular to the tangent. अब उस टेंजेंट पे जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई है उस पे अब इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि अगर आप मेरे पॉइंटर की मूवमेंट देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा इसका। आगे देखते हैं क्या है। Perpendicular to the tangent which passes through 15 degrees marking on the circle, जो कि वो टेंजेंट 15 डिग्रीज की मार्किंग से गुजरे। सो लेट्स सपोज दिस इज माय टेंजेंट एंड ये टेंजेंट कहाँ से गुजरना चाहिए, इसको मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है। तो अगर आप देखें तो ये ब्लैक वाली लाइन टेंजेंट और ये ऑरेंज लाइन दे आर मेकिंग अ प्लस साइन। प्लस साइन इसलिए कह रही हूँ ईजी वर्डिंग्स में कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट कहाँ से गुजरना चाहिए, 15 डिग्रीज की मार्किंग पर, जो कि है यहाँ पर। सो आई विल कीप दिस हियर। सो दिस इज पासिंग थ्रू द 15 डिग्रीज मार्किंग। सो ये आपका हो गया टेंजेंट। और दिस शोज के लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स इस साइड से कहीं से आ रही है। आप समझें ये सिलेंडर जो यहाँ रखा है, दिस सिलेंडर, फ्रॉम दिस सिलेंडर द लाइट सोर्स इज कमिंग। जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि ये ऑर्थोग्राफिक है, तो लाइट सोर्स इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड ऑल द लाइट रेज विल बी पैरेलल। सो ये पहली पैरेलल रे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और ये कहाँ से पास हो रही है, 15 डिग्री के मार्किंग से। अगला स्टेप है आप यही स्टेप रिपीट द सेम स्टेप फॉर ऑल द पैरेलल मार्किंग्स। अब यही काम आपको सारे पैरेलल्स के लिए करना है। सो लेट्स डू दैट। अब हमें टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर बनाना है इस वाली 15 डिग्रीज मार्किंग पर जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। Okay, we will make that here. Okay, how will you do that? You can use set square for this purpose. Just keep the set square and start making the tangent. And let me show you a set square if we can get it easily. All right, so ये है आपका सेट स्क्वायर, इस तरह का ट्रायंगुलर स्केल, और आप इसको प्लेस करेंगे इस ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग और फिर उसको आप मीट करवाएंगे जो भी एंगल है वहाँ पे रख के। इसके बाद सेट स्क्वायर को आप 30 डिग्रीज पर रखेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज सेट स्क्वायर फॉर दिस पर्पस। All right, now I am making these lines for all the other meridians, all the other parallels. अब हम 30 डिग्रीज पे बनाएंगे। Then we will make that for 45 degrees. And then for 60 degrees.
then for 75 एंड अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पोल these distances are decreasing. Right, so एक हेमिस्फेयर का हो गया. Now we have to do the same for the second hemisphere. And how you are doing it? Using the set square. यहाँ पर मेरे एरोज बहुत लंबे जा रहे हैं इस साइड पर. आपको इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू मेक सच लॉन्ग एरोज. आप छोटी सी भी मार्किंग करेंगे तो वो भी इनफ होगा. द मेन थिंग इज़ द डिस्टेंसेस along this black line. इस टेंजेंट के along आपके डिस्टेंसेस सही होने चाहिए. बाकी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन लाइंस को इतना ज़्यादा आगे करके बनाएं. Alright, so this is for 75 degrees south. Okay, then $90. Okay, so this is our projection base. ये हमारी प्रोजेक्शन बेस है और अब हम एक्चुअल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे. एंड फॉर दैट एक्चुअल प्रोजेक्शन what we have to do, let's see. Draw a vertical line on the left side of the page. So I'm importing lines from here. हम 0 डिग्रीज पे लाइन क्यों ड्रॉ नहीं करते? यहाँ पे आपने पूछा है कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसको क्यों ड्रॉ नहीं करते. इसको ड्रॉ इसलिए नहीं करते कि टेंजेंट ऑलरेडी उसको टच कर रहा होता है. ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन को टेंजेंट टच कर रहा होता है तो हमें अलग से प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें वैसे ही निशान आ जाता है. इस वजह से हम ड्रॉ नहीं करते. ओके, सो draw a line on the left side of the page. इसके बाद mark all the parallels using the interval angle on the tangent line. Mark all the parallels all the parallel intervals from the tangent line. जो tangent line में हमारे intervals mark हुए हैं, ये सारी marking इन सब को हमें mark करना है वहाँ पर. So आप कैसे इसको मार्क करेंगे? यू कैन टेक कंपास और कंपास को हर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ओपन कीजिए और फिर उस लाइन में आप मार्क करना शुरू करें. लेट मी शो यू. सैड थिंग, सब कॉपी किया और सब चला गया. सो ये जो डिस्टेंसेस आपने मार्क किए हुए हैं टेंजेंट पर, दैट विल बी मार्क्ड हियर ऑन दिस वर्टिकल लाइन. ठीक है. सिंस आई हैव कॉपीड पेस्टेड दीज लाइंस, तो इसलिए ये बहुत लंबी लंबी लाइंस आ रही हैं.
आपकी लाइंस इतनी लंबी नहीं आनी चाहिए, दोज शुड बी शॉर्ट। राइट, सो इस लाइन पे आपने जो the things which you have traced, you have to mark all those. Okay, let's make it even shorter. Okay, how you will do that? ये मार्किंग मैं तो कॉपी पेस्ट करके ले आई, लेकिन आप किस तरह से करेंगे? नंबर वन, यू कैन टेक कंपास, और कंपास की नीडल आप रखें ज़ीरो पर, यहाँ ज़ीरो की जो मार्किंग है यहाँ पे कंपास की नीडल रखें और उसको 15 डिग्री के मार्किंग पर ओपन करें। फिर आप मेन प्रोजेक्शन पे जाइए, सेंटर को रफली खुद ही अंदाजे से एक निशान लगाएं, उस निशान पे कंपास रखें और फिर मार्क करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं तमाम एंगल्स को। दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, आप कंपास को 15 पे रखें, 30 तक खोलें, दूसरी जगह पे ट्रेस कर दें, मार्क कर दें, फिर 30 पे रखें, 45 तक खोलें और फिर एक्चुअल प्रोजेक्शन में 30 पे रख के 45 का मार्किंग लगा दें। द सेकंड प्रोसीजर, द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। आप कोई भी पेपर स्ट्रिप ले लें, लेट्स सपोज ये आपने एक पेपर स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप को आप रखेंगे यहाँ पर इस लाइन के बिल्कुल साथ, और इन लाइंस को आप बिल्कुल सीधा सीधा इसके ऊपर कॉपी करेंगे। लाइक ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है, तो पॉइंटर की जो नोक है वो पेंसिल के निब है, आप उसे शार्पली इस जगह पे रखें और इसको पर ट्रेस करें, इसको पर ट्रेस करें और सारी मार्किंग्स, एंड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी प्रिसाइज कि कोई इसमें एरर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल साथ साथ छोटे छोटे निशान लगाते रहें तो इस स्ट्रिप पे ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप इस स्ट्रिप को यहाँ पर लाइए और स्ट्रिप को इस लाइन पे यहाँ प्लेस करें और फिर सारी लाइंस को वापस ट्रेस डाउन कर लें। सो दिस इज़ आई थिंक द ईजियर वे टू डू। ओके, ये सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ ऑन द थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ द इक्वेटर एज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। इक्वेटर की लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, इट वाज लेट्स सी क्या कैलकुलेशन आई थी हियर। सो इट वाज 6.28, ठीक है। तो आप एक्चुअल प्रोजेक्शन के अंदर जो ज़ीरो की मार्किंग है, इस वक्त मेरी ज़ीरो की मार्किंग यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेट मी मार्क ज़ीरो। ओके, सो इस 0 डिग्रीज की मार्किंग पर यू हैव टू मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स एट 90 डिग्रीज एंगल। आई जस्ट केम हेयर टू कॉपी एन इक्वेटर। लेट्स गो बैक। ओके, सो दिस वॉज द सेंटर मोस्ट मार्किंग। आपने इसको यहाँ पर प्लेस किया एंड दिस इज़ योर इक्वेटर। ओके, आफ्टर मेकिंग दिस इक्वेटर बनाने के बाद आपने सबसे पहले वर्टिकल लाइन बनाई, उसमें सारे पैरेलल की मार्किंग्स को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद आपने इक्वेटर को बनाया बिल्कुल सेंटर वाली मार्किंग से परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज के एंगल पे। इसके बाद आपको क्या करना है, मेक अनदर वर्टिकल लाइन ऑन द अदर एंड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का जो दूसरा एंड है यहाँ पर, इस एंड के पास यहाँ पर भी आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है। सो लेट्स टेक दिस, you will make another vertical line over here, and yeah, that again you can use the set square for that। तो ये आपका बन गया, दो वर्टिकल लाइंस बन गई। नाउ ट्रेस दीज डिस्टेंसेस
वर्टिकल लाइन बनाने के बाद मार्क द पैरेलल्स ऑन दैट लाइन। अब उसी लाइन पर हमें ये जो दूसरी लाइन आई है, इसी लाइन पे हमें ये जो ऑरेंज मार्किंग हमने लगाए हैं ये इधर भी लगाना है। तो आप वही स्ट्रिप यूज़ करें जो मैंने आपको बताया था। टेक दैट स्ट्रिप एंड just copy all the markings here. Excuse me. ये निशान आपने लगा दिए। इसके बाद क्या है, join the parallel markings on both vertical lines। ये जो दोनों वर्टिकल लाइंस में जो पैरेलल की मार्किंग है इन सबको हमें ज्वाइन करना है। सो किस तरह से ज्वाइन करना है, 15 डिग्री की मार्किंग एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर, जस्ट ज्वाइनिंग इट। नाउ ये हमें 30 डिग्रीज के लिए बनाना है and then for 45 you will use set square for this and make sure कि ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल हों। ये सारी ग्रीन लाइंस जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनाने का एक इशू होता है कि एक साइड पे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और बनाते बनाते दूसरे साइड पर अचानक से डिस्टेंस आगे पीछे छोटी बड़ी, तो ये इसलिए होता है कि आप स्केल को बिल्कुल सीधा नहीं रख पाते। इसलिए एंड टू अवॉइड दैट आप सेट स्क्वायर यूज़ करें और मार्किंग्स का बहुत ख्याल रखें कि कितनी मार्किंग्स आप कहाँ पे कर रहे हैं। So this one, and as we are moving towards the pole, these lines are, the distances are decreasing. ओके अब है स्टेप मेरिडियंस बनाने का। मार्क all the meridians by dividing the equator into equal parts। सो इक्वेटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको ये सारे मेरिडियंस बनाने हैं। तो मेरिडियंस के लिए वी हैव मेड द लिस्ट हियर। सो ये सारे मेरिडियंस आपने ड्रॉ करने हैं और ये हैं 12 मेरिडियंस, ठीक है। सो ये 12 मेरिडियंस बनाने के लिए यू विल डिवाइड दिस एनी ऑफ दिस ग्रीन लाइन, किसी भी ग्रीन लाइन को आप डिवाइड कीजिए 12 हिस्सों में। और 12 हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे, एंगल बाइसेक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट आई डू कि मैं इस लाइन को बाइसेक्ट करती रहती हूँ जहाँ तक पॉसिबल होता है। आई हैव टू मेक 12 इक्वल पार्ट्स, राइट। 12 के लिए सबसे पहले मैं इसको बाइसेक्ट कर सकती हूँ। हाउ, बाय मेकिंग 2 पार्ट्स ऑफ दिस लाइन। तो आई विल बाइसेक्ट द ग्रीन लाइन। और बाइसेक्शन का क्या मेथड है, आप कंपास लेते हैं, कंपास को अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलते हैं इस ग्रीन लाइन के, और फिर कंपास को आप प्लेस करते हैं एक एंड पर और एक आर्क ऊपर लगाते हैं और एक आर्क नीचे लगाते हैं। फिर उस कंपास को आप दूसरे एंड पर रखते हैं, जो आर्क आपने लगाए हैं उनको
क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने की वजह से मार्किंग जो बन जाती है, उन दोनों को आप जॉइन करते हैं तो ये आपके पास लाइन बाइसेक्ट हो जाती है. ओके, आई हैव टू मेक 12 मेरिडियंस. सो फॉर द 12 मेरिडियंस सबसे पहले मैंने इसको बाइसेक्ट किया तो मेरे पास अब 2 पीसेज आ गए. नाउ आफ्टर दिस जब 2-2 हो गए, इट मीन्स कि यहाँ पे भी मुझे 6 लाइनें बनानी हैं और यहाँ पर भी 6 बनानी है. सो 6 के लिए आई विल मेक हाफ ऑफ 6. सो ये भी हाफ हो गया एंड ये भी हाफ हो गया. नाउ बाइसेक्शन के थ्रू आई हैव गॉट 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस लाइन, लेकिन मुझे बनानी है 12 लाइन्स. सो मीन्स ये कि यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12. So every part will have 3 divisions और इसके लिए हम यूज़ करेंगे alternate angle method. And how the alternate angle method is done कि आप बनाते हैं एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट, आप एक एंगल ऊपर बनाते हैं और एक एंगल आप बनाते हैं नीचे. ठीक है, कंपास आपने डी को यहाँ पे रखा, एक एंगल ऊपर बनाया, फिर डी को आपने यहाँ रखा, एक एंगल नीचे बनाया. 3 पार्ट्स करने हैं तो हम कंपास लेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी का ओपन करेंगे और 2 निशान लगाएंगे इस आर्क पर. ऊपर वाले आर्म पे 2 निशान लगाएंगे और नीचे वाले आर्म पे भी 2 निशान लगाएंगे. फॉर 3 वी आर मेकिंग 2, फॉर 4 वी मेक 3. ठीक है, तो जितने हमें डिविजन्स चाहिए होते हैं उससे एक कम हमें ये मार्किंग करना होता है. सो आई हैव मार्क्ड 2 1 2. 2 निशान हमने इस ऑरेंज अपर आर्म पे लगाए, फिर 2 निशान हमने नीचे वाले आर्म पे लगाए, फिर हम उनको कनेक्ट कर देंगे. जस्ट चेक आउट द मूवमेंट ऑफ माई पॉइंटर. इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे. इस वक्त ये बना हुआ नहीं है, आप एंड देन यू कनेक्टेड लाइक दिस. तो आपके पास 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे. जो पार्ट्स आएँ उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ कर लें. सो 3 इक्वल पार्ट्स. Here you go. Oh. So this way you will make, you will divide all the other 3 parts. We will divide the remaining 3 parts according to that division. अच्छा, आपने इसको एंगल मेथड से बाइसेक्ट किया था, तो सिर्फ एक पार्ट को आप बाइसेक्ट कर लें तो उसके बाद यू कैन टेक कंपास और कंपास का नीडल आप यहाँ रखें और यहाँ तक ओपन करें और उसके बाद आप सिंपली कंपास से मार्क करते रहें. तो आपको बार बार ऑल्टरनेट एंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी. एक दफ़ा सिर्फ एक पार्ट में आप एंगल्स बनाइए एंड दैट विल बी इनफ फॉर the other 3 parts. So now you have made all the meridians and all the parallels. Next step is to label all these. So let's label these now. मेरी ये लाइंस बहुत ब्लैक वाली लाइंस बहुत लंबी हो गई हैं एंड दीज आर कवरिंग द होल पेज. लेकिन आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इतनी लंबी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ तक आपका पैरेलल्स का एक्सटेंट है, ग्रीन लाइंस आपकी जहाँ तक जा रही हैं, सिर्फ आप उससे हल्का सा उसके बाद आधा सेंटीमीटर बाहर लाइंस बनाएं, या चाहें तो एक प्रॉपर रेक्टेंगल भी बना सकते हैं.
but not very long lines like I have made. Okay, so let's import a labeling from there. So this, the labels for meridians. मेरिडियन को लेबल करते हुए हम बिल्कुल सेंटर वाली लाइन में आएंगे और सेंटर वाली लाइन पे हम लेबल करेंगे 0 डिग्रीज। तो दिस सेंटर मोस्ट वन इज़ द प्राइम मेरिडियन। और उसके बाद उसके राइट साइड पे ईस्ट वाली लेबलिंग यानी ईस्टर्न साइड पे, और फिर लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न लेबलिंग आपने वेस्टर्न हेमीस्फेयर की लेबलिंग करनी है। एंड या लेबल व्हेन यू आर लेबलिंग द meridians, make sure that you label at the top as well and at the bottom as well. दोनों साइडों पे आपने इस तरह से लेबल करना है। इसी तरह से जब आप पैरेलल्स को लेबल करेंगे तो इस साइड पे भी आप लेबल करेंगे और दूसरी वाली साइड पे भी लेबल करना है। So I am taking labels from here just to save time. Now we have just one problem, and that is these are very much far away from each other. सेंटर मोस्ट लाइन को आप 0 लेबल करेंगे, एंड देन यू हैव द 15 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 45 डिग्रीज, 60, 75 and 90. Same goes for 15 degrees south, 30 degrees south, 45 degrees south, 60, 75 and 90. यही लेबल आपको इस साइड पे भी करना है। ओके, so this is cylindrical equal area projection, and now let's have a look at the properties of this projection. Parallels are straight lines. आप देख सकते हैं सारे parallels क्या हैं, straight line की फॉर्म में है। Meridians are also straight lines. Parallels and meridians meet each other at right angle. तमाम parallel और meridian के बीच में अगर आप angle measure करें तो वो right angle है या 90 degree का angle है। Parallels are not equidistant. Their distances decreases towards the pole. Parallel के बीच में distance बराबर नहीं है, बल्कि ये distance जैसे जैसे आप pole की तरफ जा रहे हैं ये distance कम होता जा रहा है। And then we have length of all the parallels is equal to the length of equator. तमाम parallel equator के बराबर उनकी length है, जबकि actual में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस projection के अंदर ऐसा है। Meridians are equidistant. All the meridians have equal distances among them, and scale along the meridians is true and along the equator. सिर्फ equator के along और meridians के along scaling सही मिलेगी। The area is correct only between 45 degrees north and 45 degrees south. इस प्रोजेक्शन का नाम है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो ये पूरे वर्ल्ड का इक्वल एरिया नहीं दिखाता, क्योंकि इस प्रोजेक्शन के अंदर पोल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट है, या हम ये कह सकते हैं द हायर लैटिट्यूड्स, दीज आर द हायर लैटिट्यूड्स। ये 75, 60 और 90 वाले ये बहुत स्ट्रेच्ड आउट हैं। एक्चुअल अर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, लेकिन इस प्रोजेक्शन के अंदर 90 डिग्री नॉर्थ की लेंथ पूरी इक्वेटर के बराबर है। सो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है एट द पोल्स, लेकिन क्योंकि ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है तो ये 45 डिग्रीज नॉर्थ यहाँ से और 45 डिग्री साउथ तक एरिया काफ़ी इक्वल ये शो करता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये 45 नॉर्थ से 45 साउथ तक स्पेस काफ़ी बराबर है।
So this is the property that area is correct between 45 degrees north and 45 degrees south, and then shapes are highly distorted at higher latitudes, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया. So these are the properties of cylindrical equal area projection.